Hi everyone, my name is Vandana. Welcome back to yet another lecture of IELTS 10-minute concept series. And like you requested for the reading module, videos on reading module, here I am with the reading module videos. So we today are going to dive deep into multiple choice questions of IELTS reading module जो आपको दिए जाते हैं usually in the third passage, जो कि हमारा सबसे hardest और सबसे tricky passage होता है. So let's quickly dive deep into it and let's see what I've got in store for you. All right, so सबसे पहले कुछ सिंपल सी टिप्स समझ लेते हैं, राइट? बहुत बारी क्या होता है, MCQs में ऐसी कंफ्यूजन होती है दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि करेक्ट आंसर क्या है बिकॉज बहुत सिमिलर ऑप्शंस लगते हैं हमें. उस केस में ट्राई एंड अप्लाई एलिमिनेशन टेक्निक अपनी कंफ्यूजन को कम करने के लिए. एलिमिनेशन के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है और बहुत आपकी कंफ्यूजन को कम करती है ये. आप फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, MCQs में इफ़ यू आर गिवन 4 ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाते हैं कि ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता. टेक्स्ट पढ़ के ऑब्वियसली आपको अपनी नॉलेज अपना लॉजिक नहीं लगाना है, बट हाँ टेक्स्ट पढ़ के आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाता है कि ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता. तो उसको एलिमिनेट करते चले जाओ उन ऑप्शंस को जो बहुत श्योरिटी से आप क्लियर हो अपने माइंड में कि ये एक या दो ऑप्शंस हमारे आंसर्स नहीं हो सकते. अब व्हेन एज सून एज यू apply elimination technique and reduce your confusion, you will be able to zero in on the correct option quickly. Try this the next time you do MCQs. Okay, keep your pre-existing knowledge aside. जैसा कि मैंने कहा, हम अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे, जो हमें पता है हम वो यूज नहीं करेंगे. We will follow the text blindly. एंड इट्स नॉट अ गेम ऑफ मैचिंग ओनली कीवर्ड्स. ये बहुत मेजर प्रॉब्लम मुझे लगता है स्टूडेंट्स में है, कुछ स्टूडेंट्स में. सो आप सिर्फ अगर कीवर्ड्स मैच कर रहे हो कि अच्छा इस ऑप्शन में ये 4 कीवर्ड्स लिखे हैं और यही सेम 4 कीवर्ड्स मुझे मेरे टेक्स्ट में दिख रहे हैं तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसे नहीं होता है. पूरी इंफॉर्मेशन मैच करनी पड़ती है. इट्स नॉट अ गेम ऑफ मैचिंग ओनली कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि ये करेक्ट पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आंसर मिलेगा. उसके बाद आपको वो पैराग्राफ बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है. And the next one, answers for your multiple choice questions are in sequence, which is your saving grace कि answers आपके sequence में आते हैं. Okay, moving on to the first question type. Now this is something that I have taken from the latest Cambridge edition, that is book 19. Question क्या कह रहा है यहाँ पे? What point does the writer make about misinformation? Let me just take some other color. All right, what point does the writer make about misinformation in the first paragraph? So question ये आपको बता रहा है कि first paragraph में आंसर मिलेगा. So here it is your first paragraph. Let's quickly read the options and understand the keywords in the option. So misinformation is a relatively recent phenomenon. Some people find it easy to identify information. कुछ लोगों के लिए easy है to identify misinformation. Misinformation changes as it is passed from one person to another. मतलब change होती है जैसे जैसे वो pass होती चली जाती है. There may be a number of reasons for the spread of misinformation. Number of reasons हो सकते हैं. Main question क्या था? What point does the writer make about misinformation in the first paragraph? Let's read what it says. It says misinformation, both deliberately promoted and accidentally shared, is perhaps an inevitable part of the world in which we live, but it is not a new phenomenon. It is not a new phenomenon. And ये वाला option क्या कह रहा है? Misinformation is a relatively recent phenomenon. तो A तो हो गया हमारा eliminate, क्योंकि A में लिखा है कि अभी अभी नया नया spread होना शुरू हुआ है misinformation, ये नई चीज़ है. टेक्स्ट उसको मना कर रहा है. सो एलिमिनेट इट. Then it says, people likely have lied to one another for roughly as long as verbal communication has existed. Deceiving others, deceiving as in cheating others, can offer an apparent opportunity to gain strategic advantage, to motivate others to action, or even to protect interpersonal bonds. Moreover, people inadvertently, मतलब ना चाहते हुए, unintentionally, have been sharing inaccurate information with one another for thousands of years. अब B, C, D option क्या कह रहे हैं? Some people find it easy to identify information. Easy, difficult की तो कहीं बात हुई नहीं है. Eliminate it.
मिस इन्फॉर्मेशन चेंजेस एज इट इज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, चेंज की भी बात नहीं हुई है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक जब ये पहुंचती है तो ये चेंज हो जाती है, वो भी कहीं नहीं लिखा है। The right answer is D. There may be a number of reasons to the spread of misinformation. कि एक से ज़्यादा reasons हैं जिसकी वजह से misinformation फैलाई जाती है, और वो कहाँ पे लिखा है? वो लिखा है यहाँ पे इस सेंटेंस में। Deceiving others can offer an apparent opportunity to gain strategic advantage. रीज़न नंबर 1, लोग एडवांटेज गेन करने के लिए लोगों को चीट करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। टू मोटिवेट अदर्स टू एक्शन, रीज़न नंबर 2, और इवन टू प्रोटेक्ट इंटरपर्सनल बॉन्ड्स, अपने खुद के बॉन्ड्स प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। So this is how our answer number 1 is done, and we applied and removed 3 options straight away using elimination technique. और जो बचा हुआ ऑप्शन था that we are backing up, हम blindly उसको आंसर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, that we are backing up with the information given in the text. Moving on to the next one now. What does the writer say about the role of technology? टेक्नोलॉजी के बारे में राइटर क्या कह रहा है? So your A option says it may at some point प्रोवाइड अस विद अ सोल्यूशन टू मिस इन्फॉर्मेशन। मतलब टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है? सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है हमें किसी पॉइंट पर। इट कुड फंडामेंटली ऑल्टर, ऑल्टर मतलब चेंज कर सकती है। इट कुड फंडामेंटली ऑल्टर द वे इन विच पीपल रिगार्ड इन्फॉर्मेशन, लोग इन्फॉर्मेशन को जैसे देखते हैं वो हो सकता है उस तरीके को ही चेंज कर दे टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, इट हैज़ चेंज्ड द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशंस यूज मिस इन्फॉर्मेशन, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं मिस इन्फॉर्मेशन को, उसने वो तरीका चेंज कर दिया। किसने? टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट, इट हैज़ मेड इट ईजियर फॉर पीपल टू चेक वेदर इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट, लोगों के लिए ईजी बना दिया है कि लोग चेक कर सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं सही है, सही नहीं है। किसने ईजी बना दिया है? टेक्नोलॉजी ने। अब देखते हैं हमारा टेक्स्ट क्या कह रहा है। It says, however, we currently live in an era in which technology enables information to reach large audiences distributed across the globe, and thus the potential for immediate and widespread effects from misinformation now looms larger than in the past. मतलब अब हम ऐसे इरा में रह रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैलती है। दैट इज़ वाई उसका प्रॉब्लम अब प्रेजेंट टाइम्स में ज़्यादा है। वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन नाउ लूम्स लार्जर देन इन द पास्ट, इसके जो इफेक्ट्स हैं मिस इन्फॉर्मेशन के वो हमें अब ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। आगे क्या लिखा है? येट द मीन्स टू करेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन माइट ओवर टाइम बी फाउंड इन दोज सेम पैटर्न्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे है आपका मेन आंसर, एंड मुझे पता है ये एडवांस लैंग्वेज है, सो लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। ऊपर क्या लिखा है कि भाई टेक्नोलॉजी की वजह से आज के इरा में हमें मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा झेलनी पड़ती है, ज़्यादा टॉलरेट करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू पास्ट। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि येट इसी सेम पैटर्न में हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर टाइम मतलब टाइम के साथ इसी सेम चीज़ की वजह से हमें कुछ सोल्यूशन भी मिल जाए। देखो, येट द मीन्स टू करेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन, द मीन्स टू करेक्ट, मीन्स टू करेक्ट मतलब उसको करेक्ट करने का तरीका, किसको? मिस इन्फॉर्मेशन को। बी फाउंड इन, इसको अभी इग्नोर करते हैं। द मीन्स टू करेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन माइट बी फाउंड इन दो सेम पैटर्न्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मतलब इसी टेक्नोलॉजी का जो मास कम्युनिकेशन है उसी से हमें मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने का तरीका मिल सकता है ओवर टाइम, मतलब इन फ्यूचर एट सम पॉइंट, जस्ट लाइक इट्स रिटन ओवर हियर। सो सल्यूशन मिल सकता है हमें टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी जो कि मिस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा फैला रही है आज की डेट में, उसी टेक्नोलॉजी से हमें सल्यूशन मिल सकता है इस मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने का। दैट इज़ व्हाट द दिस पॉइंट इज सेइंग, एंड दिस इज ऑल्सो द टेक्स्ट इज ऑल्सो सेइंग। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप आगे के ऑप्शंस पढ़ो और देखो उसके बारे में कोई बात हो रही है क्या। इट कुड फंडामेंटली ऑल्टर द वे इन विच पीपल रिगार्ड इन्फॉर्मेशन, लोग इन्फॉर्मेशन को कैसे देखते हैं ये उसको चेंज कर सकता है, नहीं लिखा। इट हैज़ चेंज द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशंस यूज मिस इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन को यूज करती हैं, इसने वो तरीका चेंज कर दिया, लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है। इट हैज़ मेड इट ईजियर फॉर पीपल टू चेक वेदर इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट, हम जैसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी ने ईजी कर दिया है कि हम चेक कर सकें कि ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं है।
ऐसा भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है. So straight away these three options can be eliminated and the first one is matching from this statement. I hope I was able to help you some little bit with your MCQs query, and in the next lecture I will see you with true false not given of the IELTS reading module. Bye bye everyone, take care.